today class also we will see some of the numerical problems which are on the basis of that projectile motion. Okay, and we have learned the projectile motion is a trajectory and it is a parabola, and we have learned some of the cases, that is maximum height, the time of ascent, time of descent and range. We have studied those cases. Okay, on the basis of those cases we will solve today some of the problems. Okay, then see one by one. For today's problem, the question is the position of a particle is given by. Okay, तो यहाँ पे क्या दिया, एक पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है तो उसका जो पोजीशन दिया है, तो पार्टिकल कैसा है बोलते हैं यहाँ पे 3 डायमेंशन के अंदर है यहाँ पे along x axis, y axis and z axis. इसीलिए हम यहाँ पे क्या करें, बेस यूनिट वेक्टर लिए, इट इज i कैप, j कैप एंड k कैप, 3 बेस यूनिट वेक्टर्स लिए यहाँ पे, दैट इज पोजीशन दिया है पे, इट इज r वेक्टर इज इक्वल टू 3.0 or you can take directly as 3t I cap minus 2t square j cap plus 4 j cap. How they are? They are in meters, and where the t is nothing but it indicates in seconds. That is, t indicates the time in seconds, and the coefficient have the proper unit for r vector to be in meters. That means the coefficients, these are nothing but coefficients are t is nothing but unit base unit vectors are nothing but coefficient of I cap is nothing but 3 and coefficient of j cap is nothing but -2 and coefficient of k cap is nothing but +4. How they are? They are in meters, and where t is nothing but in time, it is in seconds. Okay, then what we have to calculate? We have to calculate the velocity. First we have to calculate the velocity and acceleration of the particle. Okay, and then again they are asking what is the magnitude and direction of the velocity of the particle at t is equal to 2 seconds. The time given, when the time t is equal to 2 seconds, we have to recalculate its magnitude as well as its direction. We know that for magnitude, that is v is equal to under root of vx square plus vy square. If it is in 3 dimensions, that is vz square. And theta is nothing but tan theta is equal to it is vx divided by vy. Okay, or theta is equal to tan inverse of vx divided by vy. This is the theta indicates the direction and this v indicates the magnitude. Okay, if we are taking v is the velocity of the magnitude, in case if it is in r plane acceleration, then instead of t we will take it as a, then this is ax, ay, then az. Okay, solution. They have given the position of the particle, that is r vector is equal to, that is 3t I cap minus 2t square j cap plus 4 k cap. Okay, then what we have to find out? We have to find out the velocity. Velocity is nothing but rate of change of distance with respect to time. That is, v is equal to dr by dt. That r indicates nothing but distance divided by time, or sometimes displacement divided by time also we can take. Then see here, this is the r value, this is the derivative of t. Okay, अब हम यहाँ पे इसको कैसे हम यहाँ पे इसको ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो जो कहां पे भी टर्म के अंदर यहाँ पे i कैप एंड j कैप एंड k कैप के अंदर यहाँ पे कहां पे भी t है, वो उसी टर्म को ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ओके, देखिए यहाँ पे i कैप के अंदर यहाँ पे t है, तो ये टर्म को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. उसी तरह यहाँ पे j कैप के अंदर यहाँ पे t स्क्वायर है, ये टर्म को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. बट k कैप के अंदर यहाँ पे वैल्यू ऑफ t नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, ये जो टर्म को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. ओके, तो ये दोनों टर्म को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. ओके, with respect to x का डिफरेंशिएट यहाँ पे क्या होगा, dx. उसी तरह y का डिफरेंशिएट यहाँ पे क्या होगा, dy. देन z का डिफरेंशिएट यहाँ पे क्या हो जाएगा, dz. ओके, देन t रहा तो दिस इज dt. ओके, अब समझो यहाँ पे 2x plus 3y रहा, ऐसे इक्वेशन है, इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t है. ओके, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t. Then
3y plus 3z ऐसा है। you have to differentiate with respect to x, समझे यहाँ पे instead of t हम यहाँ पे x बोल के लेंगे। अब x कौन से इक्वेशन के अंदर, ओनली x के अंदर यहाँ पे 2x यहाँ पे एक ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल कैसे है, y है एंड z है, तो अगर से y एंड z रहा तो हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, चेंज है, y and z are the these are the two other variable, that's why we will only differentiate this term, that is 2x। तो डिफरेंशिएट है बोलते हैं dy by dx इज नथिंग बट यहाँ पे क्या होगा, ओनली 2 होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन से वेरिएबल होगा उसको ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझो अगर से इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y इज नथिंग बट d by dy into 3y इज नथिंग बट यहाँ पे क्या होगा, ओनली 3 होगा। ओके, तो यहाँ पे y टर्म है, जहां पे ये टर्म रहेगा वेरिएबल टर्म विद वेरिएबल रहा तो ही इसको ही हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, समझो। अब और एक क्वेश्चन है, d by dx x raised to power of n है, फार्मूला है x raised to power of n, this is nothing but n into x raised to power of n minus 1। d by dx x raised to power of n is nothing but n into x raised to power of n minus 1। उसी तरह यहाँ पे समझो d by dt t स्क्वायर रहा, ओके t स्क्वायर रहा, तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, मेरे n की जगह में यहाँ पे क्या है, वैल्यू लिख सकते हैं, बट 2 into t raised to power of 2 minus 1, this is 2 into t raised to power of 2 minus 1 is equal to 1, this is nothing but 2t बोल के लिख सकते हैं, समझ में आया, 2t बोल के लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे अगर से d के जगह यहाँ पे dt अगर से t raised to power of 3 रहा तो ये this is nothing but 3 n into x raised to power of n minus 1, 3 into t raised to power of 3 minus 1, this is nothing but 3t square। ओके, ये तो फर्स्ट डिफरेंशिएट हुआ। इसको और से डिफरेंशिएट करना हो तो हम और कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू dt, दैट इज d by dt, ये 3t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें, दैट इज 3 into n is nothing but 2 into t raised to power of 2 minus 1, this is nothing but 3 into 2 is nothing but 6 into t raised to power of 2 minus 1 is nothing but 1, this is 60। ओके, देन और इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज d by dt 60 को हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, n into x raised to power of n minus 1, तो n का जगह पे क्या है, ओनली वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ओनली इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 बोल के लिख सकते हैं फाइनल। ओके, ऐसा हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, dr by dt है, तो d by dt r का जो वैल्यू लिखी यहाँ पे दैट इज 3t i cap minus 2t square j cap plus 4k cap। ओके, ये जो टर्म के अंदर t नहीं है इसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या बनता है वैल्यू, दैट इज 3i cap, समझे यहाँ पे एक यहाँ पे t कैसा हो रहा है, dt divided by dt get cancel, this is but 1 into 3 is nothing but 3i cap। ओके, I'm getting my 1 minus that is 2 into 2, this 2 into 2, that is 2 into 2 is nothing but 2 4। ये कैसा है बेटा, आपको देखिए यहाँ पे x raised to power of n into d divided by dx है फार्मूला के साथ, that is n into x raised to power of n minus 1। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, that is t square है पे, t square is nothing but 2 into t raised to power of 2 minus 1, this is nothing but 2t हो रहा है, तो यहाँ पे 2 into 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ 2 यहाँ पे 4 होगा। ओके, 2 into 2 is nothing but 4t j cap प्लस यहाँ पे जो टर्म ही नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज बिकम 0, दैट इज वेलोसिटी इज नथिंग बट यहाँ पे वेलोसिटी क्या बन रहा है, यहाँ पे v is equal to 3i cap minus 4t j cap। ओके, this is the velocity। In second case, that is acceleration is nothing but rate of change of velocity with respect to time, that is dv by dt, then d by dt is nothing but v का वैल्यू क्या है, that is 3i cap minus 4t j cap। टर्म डेरिवेटिव में यहाँ पे ओनली इसको है, तो ये टर्म यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, this is nothing but it becomes that is minus 4 j cap, this is the acceleration।
एक्सेलरेशन बिकम -4 j कैप। ओके, समझ में आ रहा? तो क्या पूछ रहा आपको, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इसको वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है जब हमें टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड दिया। ओके, इन v केस इट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 i cap minus 4 t j cap। ओके, when t is equal to 2, then value t का वैल्यू यहाँ पे 2 लेना। t is equal to 2, this velocity is equal to 3 i cap minus 4 into 2 is nothing but 8 j cap। okay, so i cap is along x axis and j cap is along y axis। this is become vx, this is become vy। therefore magnitude of v is nothing but vx under root of vx plus vy square, vx plus vy square। it is vx is nothing but which one, along unit vector along I cap है, I cap कहाँ पे लेंगे हम, along x axis, अगर से j cap रहा तो along y axis, अगर से k cap रहा तो along z axis। तो vx become 3 square and vy become 8 square। it is 3 square, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ vx is equal to 3 and vy is equal to 8। साइड में लिखो, साइड में लिखो, प्लस this is nothing but nothing 8 square, 3 square is nothing but under root of this is 9 plus 64, this is become root 73 meter per root 73 meter per second। this is the velocity okay। for direction just formula क्या होगा, it is tan theta is equal to vy divided by vx। vy is nothing but 8 divided by 3, this is nothing but 2.66 आएगा। ओके, 3 1 0 3 2 0 6, ऐसे ही डिवाइड ये करते रहेंगे, इसको सिंपलीफाई करते 2.66, दैट इज tan theta is equal to 2.66 और theta is equal to that is tan inverse of 2.66। यहाँ पे लॉगरिथम टेबल के अंदर आप यहाँ पे tan इनवर्स का वैल्यू देखना है। tan इनवर्स ऑफ 2.66 नथिंग बट यहाँ पे इसका एक सम यहाँ पे एंगल आएगा, दैट एंगल इज नथिंग बट यहाँ पे जो लॉगरिथम टेबल के अंदर कितना वैल्यू रहेगा वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है। और if you have a scientific calculator then you can directly see it, that is 69.5 degree, theta is nothing but 69.5 degree। here देखिए यहाँ पे जो सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पे पहले जो करा है सेम प्रॉब्लम है, वही जो प्रॉब्लम यहाँ पे जो यहाँ पे क्या दिया आपको r नियर इज 3.0 t I cap nothing but 3 plus 2 t square plus 5a and अपने आप क्या पूछ रहा है, velocity and acceleration पूछ रहा है and magnitude and direction of velocity t is equal to 1 second। जब वहां पे लास्ट प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पे क्या था, t is equal to 2 सेकंड था, बट यहाँ पे t is equal to 1 सेकंड है। जो सेम फर्स्ट का प्रॉब्लम है ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है, ये जो आपको होमवर्क है। ओके, होमवर्क के अंदर यहाँ पे करके आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जो रिजल्ट यहाँ पे मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, देन उसका जो ये डायरेक्शन कितना है वो आपको यहाँ पे लिख के बताना है। ओके, सी हियर जो प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ए बॉय कैन थ्रो ए स्टोन अप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बॉय है, एक बॉय यहाँ पे क्या कर रहा है, एक स्टोन को हम यहाँ पे उसका जो हाथ के अंदर लेके यहाँ पे क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। थ्रो कहाँ पे कर रहा है, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन मींस अलोंग y एक्सिस के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा है, एक स्टोन को थ्रो कर रहा है। जब स्टोन को थ्रो कर रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट यहाँ पे कितना जा रहा है, 10 मीटर हाइट मैक्सिमम जा रहा है। ओके, what is the maximum horizontal distance that the boy can throw the same stone up to। okay, जब ये बॉय अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे अलोंग x y एक्सिस के अंदर यहाँ पे थ्रो कर रहा होगा तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे कितना है, 10 मीटर जा रहा है। उसी तरह वहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जब अलोंग x एक्सिस के अंदर यहाँ पे वही स्टोन अगर से थ्रो करा बोले तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर होता होगा पूछ रहा आपको। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे सीटी के अंदर यहाँ पे ऐसा जो क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा वाला क्वेश्चन पूछते हैं आपको। ओके, आगे आपको यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर सम स्पेशल केसेस मालूम है यहाँ पे। ओके, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ओके, उसके बारे में हम वहां पे सॉल्व करेंगे। देयर इज सॉल्यूशन। ओके, देखिए यहाँ पे फॉर
मैक्सिमम हाइट for maximum height the formula क्या है that is h is equal to u square sin square theta divided by 2g का formula okay then g nothing but यहाँ पे क्या लेना acceleration due to gravity 10 meter per second square लेना है for maximum height okay समझो एक बॉय यहाँ पे okay डायग्राम थोड़ा सीधे रहेगा डोंट बी लॉस्ट ओके यहाँ पे क्या कर रहा है एक बॉय एक स्टोन लेके क्या कर रहा है थ्रो कर रहा है along which direction along vertical direction जब थ्रो कर रहा है यहाँ पे एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है यहाँ पे थीटा इज नथिंग बट बिकम 90 डिग्री थीटा बिकम 90 जब sin 90 रहा तो sin 90 इज नथिंग बट 1 फॉर मैक्सिमम हाइट यहाँ क्या होता इट इज h मैक्सिमम रहा तो वहां पे हाइट क्या होता इट इज ओनली बिकम u square divided by 2g u square divided by 2g because theta is nothing but 90 degree for maximum height then for maximum height उसी तरह अगर से वही बॉय यहाँ पे क्या कर रहा अगर से स्टोन अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या कर रहा थ्रो कर रहा समझो यहाँ पे ये जो स्टोन अलोंग एक्स एक्सिस थ्रो कर रहा तब यहाँ पे थीटा इज नथिंग बट मैक्सिमम यहाँ पे कितना आएगा रेंज 45 आएगा ओके फॉर मैक्सिमम रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज कैसा था यहाँ पे थीटा इज नथिंग बट 45 डिग्री एंगल था तो थीटा इज इक्वल टू 45 रहा बोलते हैं यहाँ पे क्या रहा फॉर मैक्सिमम रेंज यहाँ पे क्या हो रहा for maximum range formula क्या है it is r is equal to u square sin 2 theta divided by g is the formula okay and sin 2 theta is nothing but यहाँ पे theta is nothing but 45 for maximum range r maximum formula लिखा है देखो r maximum is nothing but u square divided by g r maximum is the formula u square divided by g because theta is equal to यहाँ पे क्या है 45 डिग्री theta is nothing but 45 यहाँ पे थीटा इज इक्वल यहाँ पे कितना बन रहा है दैट इज थीटा इज इक्वल 90 डिग्री तो 90 डिग्री का मतलब हाइट मैक्सिमम बिकम u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g और थीटा इज इक्वल 45 आया तो वहां पे डिस्टेंस मैक्सिमम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इज बट r max is equal to u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g ओके अब हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट दैट इज यहां पे दिया है यहां पे कितना h का वैल्यू दिया है h इज नथिंग बट 10 मीटर okay you know g is equal to that is 9.8 or sometimes we take that is it has a 10 meter per second square then formula h is equal to u square divided by 2g we have to calculate the velocity that is u square is equal to h into 2g that is h is nothing but 10 into 2 into this is 10 this is nothing but 10 into 10 100 into 2 is nothing but it is 200 meter u square is equal to 200 meter then easily we can calculate r maximum it is for r maximum r max is equal to value it is u square divided by g u square divided by g this is nothing but u square is nothing but 200 then g is nothing but again 10 this is nothing but only 20 meters that is r max is equal to how much r max is equal to 20 meter देखिए अभी अगर से वही बॉय यहाँ पे क्या कर रहा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन थ्रो कर रहा मुझे कितना हाइट कवर कर रहा है 10 मीटर हाइट कवर कर रहा है वही स्टोन अगर से उन्होंने अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे थ्रो कर रहा मुझे कितना मीटर थ्रो कर रहा वहां पे वही स्टोन 20 मीटर थ्रो कर रहा है ओके आई होप आप लोगों को जो आज का जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स इजीली अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ ओके थैंक यू वेरी मच